Assalamu alaikum students. Welcome to the facts of stats. Linear regression analysis, third part, that is based on the sum of square of error. E is the error or residual that is equals to the difference between the observed value and predicted value of the dependent variable. Sxy is a covariance is equals to 1 by n into product of x minus x bar into y minus y bar, and r is a coefficient of correlation is equals to the geometric mean of two regression coefficients. Let's start it. Sum of square of errors. The sum of square of error is defined by SSE is equals to sigma y minus y head whole square is equals to sigma y square minus a sigma y minus b sigma xy, where E is equals to the residual, that is the difference between observed value minus predicted value of dependent variable. Calculation of sum of square of error. Sum of square of error is defined by SSE is equals to sigma y minus y head whole square is equals to this. First question. Put a least square line to the following data taking x as independent variable. हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें x और y दो वेरिएबल्स गिवन है, where x is independent variable and y is dependent variable, and we have to prove that sigma e square is equals to summation y square minus a sigma y minus b product of x y sigma, मतलब इस पूरे कॉलम का सम into b is equals to 3, where e is equals to y minus y head. Solution. The equation of least square line y is equals to a plus bx, और इसकी नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनती हैं, इस पूरी इक्वेशन पर सिग्मा अप्लाई कर दिया, सिग्मा y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा x. a के साथ n क्यों आता है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एलैबोरेट कर दिया है, एक्सप्लेन किया गया है कि n के साथ a के साथ n इसलिए आ रहा है कि a आपका क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ हम सिग्मा नहीं लिखते, और उसकी सेकंड इक्वेशन क्या बनती है, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर. प्रीवियस स्लाइड. अब इन दो इक्वेशंस के मुताबिक हमने इसका टेबल ड्रॉ करना है. उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, सिग्मा x प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई सिग्मा x और सिग्मा x स्क्वायर, तमाम रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं. सिग्मा x यहाँ से आ जाता है, सिग्मा y from this column, product of x y means product of this and this. 6 5s are 30, 7 5s are 35, 7 4s are 28 and so on, and sum of x square, square of each value of this column. 6 का square 36, 7 का square 49. In the same way, sum of x square, then sum of y square, y square 25 and so on. Sigma y square इसकी इक्वल आ जाता है 150, and sum of these columns is equals to this. By putting the values in normal equation, पहली वैल्यू क्या थी, एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई. सिग्मा वाई किसके इक्वल है 36. एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. By putting the values in these two normal equations, और हमने ये दोनों कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर लिए. फर्स्ट इक्वेशन को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम इक्वेशन 2 से. इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है जी, b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -0.5, और इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में. देन वी गेट द वैल्यू ऑफ a, दैट इज इंटरसेप्ट, a इज इक्वल्स टू 8. In this way, y head is equals to a plus bx. b की वैल्यू हमारे पास क्या है -0.5, where a is 8. y head क्या आ जाती है 8 minus 0.5x. स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये आ गई. Then हमें we have to find y head predicted values.
x की हर जगह पे हमने ये वाली वैल्यूज पुट आउट करनी है। ओके, 6 को यहाँ पुट किया तो ये क्या आती है, y हैड 5, देन 7 पुट किया तो 4.5। इन द सेम वे सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब हमारे पास ये y है और y माइनस वाई हेड, y कहाँ से आएगा, y प्रीवियस लाइन यहां से 5 5 4 5। अब 5 5 0, देन 5 माइनस 4.5 तो ये क्या जाता है 0.5। इन द सेम वे y माइनस वाई हेड, y ऑब्जर्व वैल्यू और y हेड प्रिडिक्टेड वैल्यूज, इन दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया और इस तरह से सिग्मा e इज इक्वल टू दैट इज एरर इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर दैट इज e स्क्वायर। हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो सम क्या आ जाता है, सिग्मा e स्क्वायर 3 when x is equals to 6। जब x 6 है तो उसको हमने प्रेडिक्टेड इक्वेशन में पुट किया, x की यहाँ पे 6 पुट किया, देन y हेड क्या आता है 5, अदर ट्रेंड वैल्यूज कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। अब क्या हो रहा है, सिग्मा e स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा y स्क्वायर माइनस a सिग्मा y माइनस b इंटू प्रोडक्ट ऑफ x y सिग्मा। ये सारे सम हमारे पास पहले टेबल में है, उनकी वैल्यूज वहां से ली, a और b की वैल्यूज हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई, इसका सम भी किया जाता है 3। इट मीन्स hence prove that sigma e square is equals to sigma y square minus a sigma y minus b sigma product of x y। Show that the sum of square of error is equals to 0 and the sum of error is equals to 1.1। हमारे पास टेबल ही गिवन है, x और y दो वेरिएबल्स हैं, जबकि इसमें रिक्वायरमेंट है वो क्या है, सम ऑफ error is equals to 0 and sum of square of error is equals to 1.1। Let's started the normal equations। ये हमारे दो इक्वेशंस ड्रा होती हैं और इन्हीं के लिए हमें जो रिक्वायर्ड डाटा वो हमने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल के सिग्मा y सिग्मा x स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ x y सारी वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली और इन्हीं वैल्यूज को हमने पुट आउट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकेंड इक्वेशन में। By putting the values in normal equations 1 and 2 हमने इक्वेट कर लिया कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वेशन 2। हमने इनका डिफरेंस दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल, देन b is equals to 7/10 and b's value 0.7, put in equation 1, then a's value is minus 0.1। in this way y hat is equals to minus 0.1 plus 0.7 into x। then x ये वैल्यूज आ गई, हर वैल्यू को आपने पुट आउट करना है एट दिस प्लेस एंड देन वी गेट y हेड और y हेड के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, y माइनस वाई हेड, इसका सम मस्ट बी इक्वल टू 0। y माइनस वाई हेड इज इक्वल टू 0। हमने हर प्रेडिक्टेड वैल्यू को लेस करना है ऑब्जर्व वैल्यूज में से, ऑब्जर्व वैल्यू आपके पास गिवन टेबल में है फ्रॉम दीज वैल्यूज, ये y है आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज है। देन y माइनस वाई हेड होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ईच वैल्यू इज इक्वल टू, हमने इसका सम ले लिया, दैट इज hence prove that sigma y minus y head whole square is equals to 1.1। third question, show that question number 3, show that sum of errors and sum of square of errors is equals to 0। ये हमारे पास टेबल गिवन है x और y और we have to prove sigma y minus y head is equals to 0 and इसका स्क्वायर भी is equals to 0 ही आता है। नॉर्मल इक्वेशंस, रिक्वायर्ड डाटा हमने इसमें पुट आउट कर दिया, इक्वेट किया कोफिशिएंट्स को इन दिस वे b is equals to 1 and a is equals to -1 where y hat is equals to a plus bx। a किसके इक्वल आता है -1 और b की वैल्यू भी +1 के है। देन रिक्वायर्ड टेबल y hat is equals to x -1
x की जगह पे अपने हर दफ़ा ये वैल्यू पुट करनी है, 1 माइनस 1 0 इन द सेम वे अदर वैल्यूज, सिग्मा वाई हेड इज इक्वल टू 10. नाउ y माइनस वाई हेड, y की वैल्यू आपने गिवन टेबल से लेनी है इन द सेम वे, जैसे हर वैल्यू का डिफरेंस लेना है, ऑब्जर्व वैल्यू में से प्रेडिक्टेड वैल्यू आपने लेस करनी है, तो इसका सम क्या आता है 0. एंड देन क्योंकि ये सारी वैल्यूज 0 आ गई हैं, इट मीन्स इस 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा. So hence prove that the sum of error and sum of square of error is equals to 0. E is equals to sum of error sigma y minus y head is equals to 0, where sigma y minus y head whole square is equals to 0. क्वेश्चन नंबर 4, हमें कुछ गिवन डाटा है जो कि क्या है, ये नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस x एंड y सीरीज 15, arithmetic mean of x series 25, in the same way standard deviation of x, arithmetic mean यानी कि y bar, standard deviation s y, find coefficient of correlation between x and y. ये सारी की सारे वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक गिवन फार्मूला है, हमने इसको हाईलाइट भी कर दिया है. r इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार ओवर n इंटू एस एक्स मीन स्टैंडर्ड डेविएशन of x values and standard deviation of y values. By putting the given values in this formula, we get r is equal to 0.89. It means that the coefficient of correlation is positively correlated. Then another numerical, sum of deviation of x series 5, sum of deviation of y series 4, in the same way other given values, and we have to find coefficient of correlation. Solution, sum of deviation is not 0. It means that deviations are from some assumed mean. और इस तरह एक न्यूमेरिकल लीनियर रिग्रेशन के पार्ट 2 में गिवन है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. सिग्मा डी एक्स डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सिग्मा डी वाई, सारी वैल्यूज गिवन है. r is equal to n into sigma product of dx and dy minus sigma dx into sigma dy, और सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट आउट कर दी इस फॉर्मूले में. देन r is equal to 0.704. रिग्रेशन कोफिशिएंट, डिफरेंट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं जो मैंने यहाँ एलेबोरेट कर दी हैं, बी वाई एक्स, उसके डिफरेंट फार्मूलाज, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर सिग्मा x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर, इसके डिफरेंट फार्मूलाज, where sxy is covariance 1 by n into sigma x minus x bar into y minus y bar. Given the following data on the amount of fertilizer x and yield of wheat, हमारे पास कुछ सीड फर्टिलाइजर है और कुछ उनकी यील्ड्स है, प्रोडक्शंस है. एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन ऑफ यील्ड ऑफ व्हीट y on fertilizer x. ये हमें रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फाइंड आउट करनी है वन बाय वन. The statistic equations are given below. According to normal equations, हमने वो सारी की सारी फाइंड आउट कर ली. Then x बार क्या है, सिग्मा x ओवर n, by putting these values 126, y बार क्या है 74, regression coefficient y on x, byx means regression coefficient y on x. इसके फार्मूले में हमने गिवन वैल्यूज पुट आउट कर दी. b/x is equals to 0.39. The regression line of y on x, y hat minus y bar is equals to byx into x minus x bar. गिवन वैल्यूज हमने यहाँ पुट आउट कर दी और y हेड आ जाती है 0.39x प्लस 24.86. सारी क्वेश्चन को अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं. फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इफ x इक्वल टू 0 देन y हेड क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y हेड किसके इक्वल आ जाता है 24.86. इफ x इक्वल टू x हेड मतलब आपकी ऑब्जर्व y हेड इक्वल टू 0.39 इंटू 126 प्लस 24.86, y हेड क्या जाता है 74. In linear regression relation,
R is the geometric mean of two regression coefficients. R is equals to bxy dot byx. इनकी geometric mean दोनों का ले लिया जाए, that must be equal to coefficient of correlation. हमें क्वेश्चन गिवन और उसमें गिवन डेटा ये है, and we have to prove that the coefficient of correlation is the geometric mean of two regression coefficients. Rxy is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar, square root sigma x minus x bar whole का square into sigma y minus y bar whole square. By putting the given information in this formula, Rxy क्या जाता है 0.86 minus negative value आ गई Rxy की. Then we have to find regression coefficient Vyx, ये फॉर्मूला और उसमें गिवन वैल्यूज पुट कर दी. ये -100 है डिवाइड बाय 80. Vyx is equals to -1.25. In the same way, Bxy is equals to minus 0. Bxy is equals to minus 0.59. Then R किसके इक्वल है जी? R is equals to geometric mean of Byx into Bxy. By putting the values in this formula, we get ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसलिए हमने मेंशन की कि geometric means के हमारा आंसर क्या आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अब जो पॉजिटिव है वो तो इक्वल नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड साइड द नेगेटिव आंसर विल बी इक्वल टू द R, that is minus 0.8587. The coefficient of correlation is the geometric mean of two regression coefficient. Hence prove that. If you have any query, you can email me at this ID chhasan101010@gmail.com. Thanks for watching and click on the link given below for more conceptual topics.